Hello everyone, welcome back to your channel Grow with Grammar. Thank you so much for your wonderful response which you all are giving to this channel. Thank you. I am highly obliged to get such a response. In this channel you are growing with grammar step by step with me, Neeru. Thank you so much. So as we all know that we have completed sentences, we have we have discussed about grammar. So now today I have brought for you the series of parts of speech that I have already promised you that we will be discussing each parts of speech one by one, step by step. So today this is the series which we are going to start, that is parts of speech. And the most important thing which we are going to discuss, our first part of speech, that is noun. Okay, that is very important. Nouns are very important. So let's see what all I have for you. Let's get started in this video. What you are going to learn, let's just see that. So viewers, in this video we are going to learn all about nouns. All about nouns means in this series we will be completing everything about the parts of speech. Okay, so in this about nouns, what all you are having, let's see that. So first of all we are going to discuss the types of noun. Okay, I will be telling you, I will be explaining you what type of nouns we get. Then we will be discussing countable and uncountable nouns, what are they. Then the gender of noun. Okay, we will be discussing gender, what are they, and how we segregate, how we divide nouns in genders. हम कैसे divide करते हैं genders के according nouns को, that all we are going to learn. Then we will be discussing cases of noun. What are the cases? cases क्या होते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. Then after that there is a fun activity that I bring to you every time, that is a vocabulary. You all will love that activity, I promise you that. Okay, so please keep watching. इस वीडियो को end तक देखना ज़रूरी है, because these all things I will try to cover, and within this video you will be learning many of these things. इसमें से बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हैं. ठीक है, so let's get started and let's see what all about nouns you all are going to learn. Okay, so let's start. So first and the most important thing, as in my every video whenever I take any topic, जब भी मैं कोई topic start करती हूँ तो सबसे पहले हम उसकी definition discuss करते हैं. So उसी तरह आज हम noun की definition discuss करेंगे. So here you can see on the screen that a noun is a word that name a person, place, a thing or an idea. Okay, एक noun के through आप ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं. फाइन. नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन. जब हम किसी चीज को कोई नाम दे देते हैं देन इट बिकम्स नाउन. वो नाउन बन जाता है, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई प्लेस हो, कोई थिंग हो, या कोई आइडिया हो. कैन यू एवर इमेजिन कि हर एक चीज जिसका हम नाम लेते हैं वो सब कुछ नाउन है. हम सब एक नाउन है. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन विच वी आर लर्निंग सिंस आवर चाइल्डहुड. हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं दैट अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, अ थिंग और एन आइडिया. ओके, सो लेट्स सी व्हाट ऑल वी कैन डिस्कस अबाउट नाउन्स. इससे ज्यादा हम और क्या सीख सकते हैं नाउन के बारे में. लेट्स सी दैट. So with the help of some example, let's see what are the nouns. Here you can see I visited the Taj Mahal in India. So these picture describe in a very better way that what are these. Okay, we have given the name to these things. Then I love to read story books. Here you can see a kid is loving his or her book that he loves to read. Then a pack of wolves. Okay, that pack is also a noun. What kind of a noun it is, I will let you know in the video. Then next, this is Bob's skateboard. Okay, this is Bob's skateboard. This is a man, this is a boy who is just loving his skateboard. Now next, I like his honesty. Honesty is a very good thing to do and we all should appreciate it. Okay, so with the help of these examples, whatever I have shown to you, there are so many. The words which are printed in green, they all are nouns. Can you imagine how many nouns we have got? And there are lot and lot of more. Okay, बहुत सारे nouns होते हैं, हम जिनको भी नाम दे देते हैं वो सारी चीजें noun बन जाती हैं. ठीक है, so let's discuss. Let's see what next I have for you. So
countable and uncountable nouns are the second thing which we are going to discuss now. So here you can see that what are the countables and uncountable nouns. So countable nouns क्या होते हैं? Simple, very simple, from the name itself you can understand, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल वो नाउन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी हाउ टू फाइंड इट आउट, हाउ टू सेग्रीगेट देम. लेट्स सी दैट. सो काउंटेबल नाउन्स have a singular and plural form. Okay, like a tree, two trees. Okay, ये एक singular form में भी use हो सकते हैं और plural form में भी use हो सकते हैं. Then can use a singular verb or plural verb. So that is obvious कि जब हम इसको singular form में use करेंगे, जैसे कि the book is old. So book, हम एक book की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ हमारा verb भी singular use हो रहा है, that is. And when we will use it plural, like the books. Okay, the books means एक से ज़्यादा book की बात हो रही है, then we have used the plural verb also. So the book is old, the books are old. Okay, so countable nouns can be used as singular and plural both. हम एक तरह से भी use कर सकते हैं या एक से ज़्यादा के बारे में भी बात कर सकते हैं. Then uncountable nouns. अब uncountable nouns क्या होते हैं? Have only one form. हैव ओनली वन फॉर्म. इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, ये सिंगुलर की तरह ही यूज होते हैं. ठीक है, दे कैन बी यूज्ड इन अ सिंगुलर फॉर्म. वी कैन नॉट काउंट, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, लाइक बटर. ओके, बटर यू कैन नॉट काउंट. अब आप बोलोगे कि हम तो 100 ग्राम्स बटर लेते हैं या 200 ग्राम्स बटर लेते हैं. सो दैट इज द वेट. ओके, दैट यू आर मेजरिंग दैट बटर, आप उसको मेजर कर रहे हो, बट काउंट नहीं कर सकते हो कि कितने पार्टिकल्स हैं उसमें. यू कैन नॉट काउंट. ओके, सो बटर कैन नॉट बी काउंटेड, दैट्स वाई इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है. लाइक बटर कैन नॉट बी रिटन एज बटर्स. ओके, देन ऑलवेज यूज अ सिंगुलर वर्ब बिकॉज इट इज अ सिंगुलर फॉर्म. then we only use a singular verb with it, like sugar is sweet. Okay, so sugar, again we cannot count it, that's why it is used in singular form and singular verb it is having. Now next, cannot use a, an or a number before them. इनके साथ आप article a और an को use नहीं कर सकते हो और ना ही हम numbers use कर सकते हैं, like 1 2 3. Okay, like see, a rice, it is wrong. 2 rice, wrong. A bread, wrong. 2 breads, wrong. ओके, ये सब कुछ रॉन्ग है क्योंकि ये नंबर्स और आर्टिकल्स आप इनके साथ यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं. नाउ नेक्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑफन यूज्ड एज, मीन्स देखो कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ही हमारे आगे के जो कंटेंट हम समझने वाले हैं वो हमारे लिए बहुत ईजी बन जाएंगे. ओके, सी, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज. एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मीन्स दैट कैन नॉट बी टच, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, मतलब हमारी सारी फीलिंग्स. ओके, जिन्हें हम फील करते हैं, लाइक फ्रीडम, एजुकेशन, लक, हेल्प, ब्यूटी, वट एवर थिंग्स यू कैन नॉट फील अबाउट योर 5 सेंसेस. ओके, लाइक आईज, ईयर, नोज, इन सब के साथ आप उसको फील नहीं कर सकते हो, टच नहीं कर सकते हो. ठीक है, सो दैट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कम्स इन अनकाउंटेबल नाउन्स. इसके बाद लिक्विड एंड गैसेस. ठीक है, मीन्स गैसेस, लिक्विड, लाइक वाटर, मिल्क, वाइन, जितनी भी एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं इन्हें आप बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते हो, सो दे आर अनकाउंटेबल. ओके, देन मेड ऑफ स्मॉलर पार्ट्स, जो बहुत छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, लाइक शुगर, राइस, सॉल्ट. यू कैन नॉट काउंट ईच पार्टिकल ऑफ शुगर और ईच पार्टिकल ऑफ राइस. नाउ मटीरियल. मटीरियल मीन्स द थिंग फ्रॉम विच द अदर थिंग्स आर मेड, जिस सब्सटेंस से आप दूसरी चीजें बनाते हो, जैसे वुड, ग्लास, पेपर. ओके, हम इनसे दूसरी चीजों को बनाते हैं, सो मटीरियल्स को हम काउंट नहीं कर सकते. देन सम फूड कट इनटू स्मॉल पार्ट्स. कुछ फूड जिनको हम स्मॉल पार्ट्स में कट कर देते हैं उन्हें भी हम अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं, लाइक ब्रेड, फिश, चीज. ये सारी चीजें अनकाउंटेबल हैं जब इनको हम स्मॉल पार्ट्स में कट कर देते हैं. नाउ बी केयरफुल, अनकाउंटेबल्स इन इंग्लिश. ओके, मीन्स अनकाउंटेबल थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं जब हम इनको इंग्लिश में यूज कर रहे होते हैं, लाइक फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, न्यूज,
information, luggage and money, even money also considered as a uncountable noun. अब आप कहोगे कि हम 10 रुपीज 5 रुपीज करके तो काउंट कर सकते हैं, बट नो, दैट इज रॉन्ग. इनको हम एज अ मनी एज अ होल कंसिडर करते हैं. फाइन. सो we are not talking about the amount, okay, we are talking about money as a whole thing. सो इसलिए यहाँ पर इसको अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा गया है. ओके, सो व्हेन वी विल फर्दर डिस्कस कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल को हम सेग्रीगेट या डिवाइड कैसे करेंगे, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू. सो लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट वी ऑल हैव. सो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स को हम डिवाइड कैसे करते हैं, लेट्स सी. फर्स्ट इज कॉमन नाउन, सेकेंड इज प्रॉपर नाउन, देन collective noun, then abstract noun and material noun. These are the 5 kinds. ये 5 तरह के nouns हैं जिनमें हम nouns को कैटेगराइज करते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन से हम काउंटेबल में रख सकते हैं और कौन से अनकाउंटेबल में रख सकते हैं. तो लेट्स सी. कॉमन नाउन्स काउंटेबल, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं. प्रॉपर नाउन्स अगेन दे आर काउंटेबल, इन्हें आप काउंट कर सकते हैं. अभी मैं बताऊंगी कैसे. नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन्स दे आर ऑल्सो काउंटेबल्स, इनको भी हम काउंट कर सकते हैं. देन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, फीलिंग्स, जैसा अभी मैंने पहले भी बताया. सो ये हमारे अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं. देन द नेक्स्ट, मटीरियल नाउन, अगेन दैट आई हैव डिस्कस दैट वुड, ग्लास, ये सारी चीजें मटीरियल होती हैं जिनसे हम दूसरी चीजों को बनाते हैं. सो दे ऑल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ मटीरियल नाउन. सो हेयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स और उनको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल की कैटेगरीज के थ्रू डिवाइड करते हैं. ओके, सो लेट्स डिस्कस इट मोर. इसको और एक्सपैंड वे में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, ये सारे नाउन्स क्या होते हैं. सो लेट्स सी दैट. So here with the help of the countable and uncountable nouns, we have divided 5 kinds of noun that are common, proper, collective, material and abstract. So these are the 5 kinds of nouns जिसको अब हम डिस्कस करेंगे और एक्सपैंड वे में कि इन्हें हम कैसे कैटेगराइज करते हैं. कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स हम किन्हें बोलते हैं, ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो टिल नाउ, अगर अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल. ओके, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो. जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. सो I hope you are liking this video. Please give a thumbs up. Okay, please subscribe the channel. Okay, so let's see what I have next for you. So the first kind of a noun which we are going to discuss are common noun. Okay, common nouns क्या होते हैं. A common noun names any person, place, thing or even idea. Fine. किसी भी चीज को जब हम नाम दे देते हैं, ठीक है, लाइक हम जो भी चीजें हैं, लाइक कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, फाइन, सो दे ऑल आर कॉमन नाउन. जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देख रहे हैं ये कॉमन नाउन्स है. कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे कम्स एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. जब तक वो किसी सेंटेंस के बिगनिंग में नहीं आते हैं, स्टार्टिंग में नहीं आते हैं, तब तक हम उनको कैपिटल लेटर से लिखना स्टार्ट नहीं करते हैं. सो हियर यू कैन सी द एग्जांपल लाइक टीचर, बेसबॉल, सिटी. अब सिटी कोई भी सिटी हो सकती है, दिल्ली, गाजियाबाद, देहरादून, एनी सिटी इट कैन बी. ठीक है. इफ आई टॉक अबाउट टीचर, टीचर कोई भी टीचर हो सकता है, हमने एक स्पेसिफिक नाम यहाँ नहीं दिया है. ठीक है. सो दीज ऑल आर द नाउन्स एंड दे आर कंसिडर एज कॉमन नाउन बिकॉज हम किसी भी, एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी थिंग की बात कर रहे हैं. सो दे आर कंसिडर्ड एज अ कॉमन नाउन. नाउ लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट. So the opposite of common nouns are proper nouns. Okay, common noun के opposite अगर मैं बात करूँ तो वो होते हैं proper noun because इसमें हम proper nouns या proper name वाली चीजों की बात करते हैं. Like a proper noun names a specific person, place, thing or even idea. Okay, जिसको हम एक proper नाम दे देते हैं. Fine. It refers to a name of a noun. Here you can see it refers to a name of a noun. Name means यहाँ आप जितने example देख रहे हो like this cat is sitting here. Okay, cat is a common noun. But अभी हमने इसको एक नाम दे दिया है Felix. Okay, so then this cat has become proper.
देन दिस इज अ बिल्डिंग, बिल्डिंग इज अ कॉमन नाउन, लेकिन इसको एक प्रॉपर नाम क्या दे दिया है, व्हाइट हाउस, सो वो प्रॉपर हो गया. देन नेक्स्ट नाइक. ओके, ये एक शू है, शू इज अ कॉमन नाउन, क्योंकि हमें नहीं पता कोई भी शू हो सकता है, लेकिन उसको आपने एक प्रॉपर नाम दे दिया है, तो ये प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो गया है. वेरी सिंपल. जब हम किसी चीज को कोई नाम दे देते हैं, प्रॉपर स्पेसिफिक कोई नाम दे देते हैं, तो वो हमारा कॉमन नाउन से कन्वर्ट होकर प्रॉपर नाउन बन जाता है. ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द पॉइंट्स विच वी शुड रिमेंबर while identifying the common and the proper noun, because कई बार इसमें बहुत confusion हो जाता है. तो let's see that. So these are the points which you all should remember while finding out the common and proper noun. Common और proper noun को ढूंढते वक्त या identify करते वक्त ये चीजें हमें याद रखनी चाहिए. That common nouns are common names of persons, थिंग्स, प्लेसेस, एनिमल्स और इवेंट और आइडियाज. ठीक है, कॉमन नेम्स जो हम स्पेसिफिकली किसी को नहीं देते हैं. दे स्टार्ट्स विथ अ स्मॉल लेटर, जो अभी मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि कॉमन नाउन्स जब तक सेंटेंस के बिगिनिंग में नहीं आ रहे हैं वो स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं. देन प्रॉपर नाउन्स आर स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पर्सन. ठीक है, प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक नेम होते हैं जो पर्सन, थिंग, प्लेस और एनिमल को दिए जाते हैं. देन दे ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर. ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, इनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा. लाइक इफ यू रिमेंबर प्रीवियस, इन द प्रीवियस वन वी हैव गिवन द नेम टू दैट कैट. ओके, सो दैट नेम ऑफ द कैट वाज रिटन विथ कैपिटल लेटर. ओके, बिकॉज इट वाज प्रॉपर नाउन, वो एक प्रॉपर नाउन की बात हो रही थी. फाइन, सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू ऑल शुड रिमेंबर वाइल आइडेंटिफाइंग कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. कॉमन एंड प्रॉपर नाउन को सेंटेंस में ढूंढते वक्त ये सारी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए. So the next kind of a noun is abstract nouns. So abstract nouns क्या होते हैं? Abstract nouns are nouns that you cannot see, hear, touch, smell और taste. ठीक है, अपनी 5 सेंसेस के थ्रू आप इनको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं. दे आर आइडियाज, क्वालिटीज एंड फीलिंग. दे कैन नॉट बी सीन और टच. इन्हें आप टच नहीं कर सकते, इन्हें आप देख नहीं सकते, ओनली यू कैन फील देम. ओके, सो जितनी भी हमारी फीलिंग्स होती हैं वो सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की कैटेगरी में आती हैं. लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, जस्टिस. ओके, ये सारी चीजें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम उन्हें टच नहीं कर सकते, हम उन्हें देख नहीं सकते. ठीक है, सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को कैटेगराइज करने के लिए हम सारी इन्हीं चीजों को इसमें रखते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ओनली वी कैन फील देम. So all the feelings comes in the category of abstract nouns. Now let's see the next one. So here I have few more example for you that will explain more that what are the abstract nouns. Abstract nouns क्या होते हैं? Like see, we have to get at the truth of the matter. We have to get at the truth. Okay, सच्चाई. ट्रुथ इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि आप ट्रुथ को सिर्फ फील कर सकते हो, सच्चाई को महसूस कर सकते हो, आप उसे टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. मैरी इज एन द टाइप ऑफ पर्सन हु गॉसिप्स. ओके, गॉसिप्स मतलब किसी के बारे में बुरा भला कहना. ओके, सो गॉसिप्स इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. पीपल लॉस्ट फेथ इन बैंक्स. फेथ, भरोसा करना, दैट इज ऑल्सो अ फीलिंग. डिफीट, शी विल डिफीट देम. ओके, हरा देना किसी को, दैट इज ऑल्सो अ फीलिंग. I was delighted at the news for her success. किसी की कामयाबी, किसी की सक्सेस, that is also a feeling which you can feel but not see, touch और smell. ओके, सो ये सारे वर्ड्स जितने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सारे वर्ड्स लाइक ट्रुथ, फेथ, डिफीट, ये सारी चीजें हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरीज में आती हैं, क्योंकि ये बहुत ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम सिर्फ फील कर पाते हैं. ठीक है, हम इनको टच नहीं कर सकते, हम इन्हें देख नहीं सकते. इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे फ्रेंडशिप. ओके, फ्रेंडशिप को आप महसूस कर सकते हो. चाइल्डहुड आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट उसे सी नहीं कर सकते, उसे टच नहीं कर सकते. फाइन, सो दे ऑल आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. नाउ लेट्स सी फर्दर. सो द नेक्स्ट काइंड ऑफ अ नाउन इज मटीरियल नाउन. सो हम देखेंगे कि मटीरियल नाउन्स क्या होते हैं. लाइक मटीरियल नाउन्स इज द नेम गिवन टू द मटीरियल सब्सटेंस फ्रॉम विच द थिंग्स आर मेड. ऐसी चीजें जिनसे हम दूसरी चीजों को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं. ठीक है, कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो हमें गॉड ने दिए हैं, दे आर गॉड गिफ्टेड. कुछ मटेरियल्स हम इंसानों ने बनाए हैं, द ह्यूमन बीइंग्स हैव मेड दैट.
ओके, सो मटीरियल नाउन्स क्या होते हैं, लेट्स सी कि मटीरियल वो सब्सटेंस जिससे दूसरी चीजों को बनाया जाता है. ओके, लेट्स मेक इट क्लियर विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स. हियर इज वन एग्जांपल, लाइक cotton dresses are very cheap and comfortable. So here you can see that this cute girl is wearing a cotton dress. Okay, वो cotton dress पहन करके खड़ी हुई है यहाँ पर. So second, my mom purchased a gold ring for me. Okay, gold ring, अब ये किसकी बनी हुई है, gold की. So gold is a material. Here cotton dress, cotton is the material, is a fabric, वो जिससे बना हुआ है. ठीक है. Then नेक्स्ट, आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे, मैं रोज दूध पीता हूँ या पीती हूँ. ठीक है, मिल्क इज ऑल्सो अ सब्सटेंस. फाइन. देन another one is my father has a shop for diamonds. So diamonds is a thing which God has given to us, and diamond is also a substance जिससे हम बाकी चीजें बनाते हैं. Like हम diamond से rings बनाते हैं, हम sets बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं. So materials are those सब्सटेंस जिनसे हम दूसरी चीजों को कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो दे ऑल आर कंसीडर्ड एज अ मटीरियल नाउन. इन सबको हम मटीरियल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं बिकॉज इनसे हम दूसरी चीजों को जनरेट करते हैं, बनाते हैं, क्रिएट करते हैं. ठीक है, सो दे ऑल आर नोन एज मटीरियल नाउन. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट. So the last kind of the nouns are collective nouns, that this is a kind of a noun in which we refer to a group of things or people. Okay, we refer to a group, एक group के बारे में हम बात करते हैं. They usually singular words that represent a number of things. मीन्स यूज तो ये सिंगुलर फॉर्म में ही होता है, सिंगुलर तरीके से होता है, लेकिन हम इसमें अलग अलग चीजें के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल्स. अ क्राउड ऑफ पीपल, हियर यू कैन सी दैट मेनी पीपल आर स्टैंडिंग. तो जहां पर एक ग्रुप की तरह ये लोग खड़े हुए हैं, तो उस ग्रुप को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, क्राउड. ओके, अ क्राउड ऑफ पीपल. सो दिस इज अ कलेक्टिव वर्ड. क्राउड इज अ कलेक्टिव वर्ड जो इन नाउन्स के लिए, पीपल जो एक नाउन है उसके लिए ये यूज हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. अ बंच ऑफ ग्रेप, हियर यू कैन सी जेरी इज ईटिंग अ बंच ऑफ ग्रेप्स. ओके, ग्रेप्स आर द नाउन्स. ठीक है, ग्रेप्स हमारे नाउन्स हैं और उनके एक बंच को, उनके ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव वर्ड के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज बंच. देन अ स्वार्म ऑफ बीज मीन्स मधुमक्खियों का झुंड. ओके, सो उसके लिए भी एक कलेक्टिव, एक पर्टिकुलर कलेक्टिव वर्ड है जो है स्वार्म. ओके, सो दीज ऑल वर्ड्स जो एक ग्रुप के बारे में बात करते हैं, चाहे वो किसी पर्सन का हो, किसी चीज का हो, दे ऑल कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कलेक्टिव नाउन. उनको हम कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रखते हैं. So here you can see the 100 examples of collective noun. Okay, collective noun के 100 examples हैं. This is just for your reference. ये आपकी practice के लिए हैं, आपके reference के लिए हैं. Because जब आप English speaking करते हैं, जब आप speaking के लिए इन सारे words को use करते हैं, ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन्स आपको सेंटेंस को इफेक्टिव और शॉर्ट बनाने में बहुत मदद करते हैं. ठीक है, सो आई विल सजेस्ट यू दैट ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन्स आप रीड करें, इन्हें लर्न करें. ठीक है, सो देयर आर, दिस इज द लिस्ट ऑफ 100 कलेक्टिव नाउन्स. आई थिंक इट विल हेल्प यू. सो you all have to learn it, you all have to practice it also. Okay, so now as we have discussed the kinds of noun, the types of nouns हमने डिस्कस कर लिए हैं. काउंटेबल, अनकाउंटेबल क्या होते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल्स को हम डिवाइड कैसे करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, मटीरियल नाउन्स में कैसे हम उनको डिवाइड करते हैं. सो वी आर मूविंग अहेड विद द जेंडर्स ऑफ नाउन. ओके, सो जेंडर्स ऑफ नाउन्स क्या होते हैं, जेंडर क्या होते हैं, जेंडर में हम उनको डिवाइड कैसे करते हैं, नाउन्स को सेग्रीगेट कैसे करते हैं. ठीक है, वो अब हम देखने वाले हैं. सो व्यूअर्स, इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सो प्लीज प्रेस द लाइक बटन. ओके, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल. सो इट विल इंस्पायर मी, इट विल हेल्प मी कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाती रहूं और आपको सारे ये कंटेंट, सारी ये चीजें समझ में आती रहे. सो गिव इट अ थम्स अप, subscribe the channel. Let's move ahead and let's see what are the gender of nouns. So the first question is, what are nouns gender, why we use them.
Okay, so here you can see grammatically gender is a system of noun classification. Noun classification means nouns की categories को divide करना. कौन सा नाउन किस कैटेगरी में आएगा ये हम जेंडर्स के थ्रू डिसाइड करते हैं. मैस्कुलिन जेंडर होगा, फेमिनाइन जेंडर होगा, वो कैसे होगा दैट वी विल डिस्कस. लेट्स सी. सो अ कॉमन जेंडर क्लासिफिकेशन includes masculine and feminine categories. Masculine nouns are words for men, boys and male animals. Feminine nouns are words for women, girls and female animals. Okay, so ये सारी categories हैं जिनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं कि इनको हम segregate कैसे करते हैं, इनको हम bifurcate कैसे करते हैं, divide कैसे करते हैं. तो let's see and let's discuss all four kinds of nouns. Okay, let's see them. So nouns can be divided into four genders. There are four genders. ठीक है, nouns को हम four genders में divide करते हैं. पहला होता है masculine gender which contains the masculine or the male category. ठीक है, मेल या masculine category को refer करती है. Like it refers to names of boys and men. Okay, जितने भी मेल हैं, जितने भी नेम्स हम मैन को देते हैं, लाइक फादर, ठीक है, किंग, हीरो, अंकल, ये जितने एग्जाम्पल्स आप यहाँ देख रहे हो ये सारी एक मेल कैटेगरी को डिस्क्राइब करते हैं. सो दैट्स वाई दीज आर नोन एज मैस्कुलिन जेंडर. ओके, इन्हें हम बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर. नेक्स्ट इज द ऑपोजिट ऑफ मैस्कुलिन जेंडर. अब मैस्कुलिन जेंडर है तो फेमिनाइन जेंडर भी होगा. सो फेमिनाइन जेंडर रिफर्स टू द नेम ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन. जैसे यहाँ बॉयज और मेन के लिए हो रहा था, यहाँ पर गर्ल्स और वुमेन के लिए हो रहा है. लाइक आंट, मदर, ग्रैंडमा, नन, हेन. ओके, ये सारे वर्ड्स एक फीमेल कैटेगरी को डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, सो मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर दे आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर. ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. मैस्कुलिन मतलब मेल कैटेगरी एंड फेमिनाइन मतलब फीमेल कैटेगरी. लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट काइंड ऑफ अ नाउन जेंडर इज कॉमन जेंडर. अब कॉमन जेंडर क्या होता है? जैसे हमने कॉमन टाइप तो पढ़ लिया, कॉमन नाउन्स क्या होते हैं वो हमने पढ़ लिया. अब हम कॉमन जेंडर कैसे डिवाइड करेंगे या क्या कॉमन जेंडर कैसे फाइंड आउट करेंगे. लेट्स सी. रिफर टू नेम्स ऑफ बोथ गर्ल्स एंड बॉयज. अब ऐसा कौन सा नाम है जो बोथ गर्ल एंड बॉय का हो सकता है? वेरी सिंपल, डॉक्टर. डॉक्टर एक लड़की भी बन सकती है, एक लड़का भी बन सकता है. ठीक है. रिलेटिव, रिलेटिव आपका कोई भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकती है या कोई गर्ल भी हो सकती है. ठीक है. आपकी फ्रेंड, आपका फ्रेंड कोई भी हो सकता है, बॉय, गर्ल, एनीवन. सो ये जितने भी कैटेगरीज हैं, ये जितने भी वर्ड्स यहाँ हम यूज कर रहे हैं, गर्ल बॉय दोनों के लिए यूज कर रहे हैं, एंड दैट्स वाई दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कॉमन जेंडर. ठीक है, इसीलिए इनको हम कॉमन जेंडर में रखते हैं, इन्हें हम कॉमन जेंडर बोलते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज न्यूटर जेंडर. अब न्यूटर जेंडर क्या होता है? रिफर्स टू नेम्स ऑफ थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट. मीन्स इन अ सिंपल वे इफ आई से ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स, जिनमें जान नहीं होती है, बेजान चीजें, जितनी भी चीजें हो, चाहे वो पेंसिल हो, इरेजर हो, शार्पनर हो, कुछ भी हो, दे ऑल कम्स इन दिस कैटेगरी. सो कैन यू एवर इमेजिन कि जो हमारी ये नॉन लिविंग चीजें हैं जिन्हें हम कभी इतना रियलाइज नहीं करते हैं, बट दे ऑल हैव द जेंडर. ठीक है, उनको भी हम जेंडर में कैटेगराइज करते हैं. सो refers to the things or object. Like here you can see chocolate, there is a chocolate bar. Okay, and who don't love chocolates? We all love chocolates. Okay, so ये भी एक जेंडर है, इसका भी एक जेंडर है. एंड व्हाट जेंडर इट इज हैविंग? इट इज न्यूटर जेंडर. चॉकलेट का जेंडर कौन सा है? न्यूटर जेंडर. सो दीज आर द फोर कैटेगरीज, फोर जेंडर्स इन which we divide the nouns. Masculine for male, feminine for female, common for both girl and boy or both male and female, and neuter for all the non-living objects, for all the non-living things. So let's move ahead and let's see what I have next for you. So guys, the best part of the video has came for all my viewers and especially for the kids, those who are watching this. It's a fun time, means it's a vocabulary time. Okay, I know you all are waiting for this time. So what are we going to do in this activity today? Let's see that. So in this activity you have to think and write, think
and write maximum words that you can write within the time limit. मैं आपको 1 मिनट का टाइम लिमिट दूंगी और उस एक टाइम लिमिट में आपको सोचना है और लिखना है जितने वर्ड्स आप लिख सकते हैं, ओके, एक लेटर से। एक सिंगल लेटर मैं आपको दूंगी जिससे आप जितने मैक्सिमम वर्ड्स 1 मिनट में बना सकते हो, वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है, आपको वो बनाने हैं। सो उठा लीजिए अपना पेन और पेपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स प्ले अ वेरी वंडरफुल वोकैबुलरी गेम। लेट्स क्विकली डू इट। सो लेट्स स्टार्ट। आई सपोज सबने अपना पेन पेपर उठा लिया होगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। द वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विथ लेटर S. Yes, guys, you are right. You have to write the maximum words you can write with letter S. S से जो लेटर स्टार्ट होते हैं, जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं, वो आपको लिखने, as simple as that. And your time starts now. So let's get started and start doing it. Buck up and start doing it. Time is running. सोचिए एस से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। वो 2 लेटर के हो सकते हैं, 3 के हो सकते हैं, 4 के हो सकते हैं, 5 के हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। क्विकली डू इट, बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस द वर्ड्स कि वो कौन कौन से हो सकते हैं। आई विल लेट यू नो द आंसर ऑल्सो। ओके, सो क्विकली राइट इट। यू हैव 1 minute फॉर इट। क्विकली डू इट, वेरी क्विकली। So guys, as your time is up and I believe that all of you have done wonderfully, सबने बहुत अच्छा किया होगा। So let's see the answers. Here you go. There are so many words which you can make with लेटर एस। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम एस से बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ ही हैं क्योंकि मैं सारे यहाँ नहीं लिख सकती हूँ, बट इसके अलावा भी आप बहुत सारे वर्ड्स एस के थ्रू बना सकते हैं। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स के थ्रू बहुत सारे वर्ड्स हमारे बनते हैं, ये हम सबको पता है, ठीक है। सो दिस इज अ स्मॉल एक्टिविटी जो आपकी वोकैबुलरी को बहुत एनहेंस कर सकती है, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। आई सपोज एवरीवन हैज़ लव दिस गेम, एवरीवन हैज़ liked this game and you will play it with your family again. Okay, अपनी family के साथ दोबारा खेलिए and try to do some try to make some words apart from S. S के अलावा कोई और लेटर लेकर के आप वर्ड्स बना सकते हैं। So it will help you and it will make you very happy that to see how much words you can make within the time limit of 1 minute. Okay, so guys, we have come to the end of this video. Thank you so much for watching it. Now nouns cases are left. That is left. We have not discussed it. So nouns cases हम अपनी next video में continue करने वाले हैं। उसके अलावा भी noun से related कुछ और चीज़ें हैं जो हम next video में discuss करेंगे, क्योंकि अभी भी nouns ख़त्म नहीं हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी nouns के बारे में हमें जाननी है, हमें समझनी है। ओके, सो इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये अच्छा लगा है और आप nouns cases के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज राइट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और अपना लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ग्रामर एंड इट विल हेल्प यू टू ग्रो विथ ग्रामर। ओके, सो थैंक्स फॉर गिविंग योर लवली सपोर्ट। कीप इट ऑन, उसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, इस चैनल को लाइक करते रहें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच एंड नाउ आई टेक योर लीव। I'll see you in the next video now. Till then, take care. Bye bye. See you.